So the kavita is, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती हुई दीवारों से 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, कम ऑन टुगेदर, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. बस ऐसी ही कोशिश की. There was a dream, and today that dream is getting converted into reality. Well, everybody dreams, and today somebody dreamt for many people around here. You know, somebody dreamt that जितने लोगों के पास talent है, उनको एक अच्छा platform मिलना चाहिए. So I welcome you all to the launch party of Hop. Now, House of Performance एक बहुत ही unique concept है, and for that मैं चाहती हूँ एक बार Hop के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, and I welcome all our distinguished guests and judges. It is my privilege, pride and honor to be part of this entire family, and when I call a family, you all are part of the Hop family. So this is the first of its kind, the first ever digital reality show. पहली बार reality show digital platform में होने वाला है. And like you all know that there are 5 categories: dancing, singing, acting, and this time we are also considering music. Now music, if I'm not wrong, has 2 parts, solo and group. आज तक कोई भी रियलिटी शो में म्यूजिक को इतना वेटेज नहीं दिया गया था जो हॉप दे रहा है. तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर सच अ वंडरफुल थॉट. एंड या I think we have, before I call our lovely judges on the stage, मैं चाहती हूँ एक बार जो हमारे 2 पिलर्स हैं उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए. We are waiting for Leslie sir, but let me introduce to you our jury members. Now starting with somebody I really adore a lot, somebody I've been inspired by. From the streets of Paris to the gully and nukkad of Mumbai, from the ghats of Shillong to the sheris of Ahmedabad, from beautiful Kashmir to super gorgeous Kanyakumari, bas inhi ke charche hai. Now he's won 2 national awards. Trust me, if I am giving any introduction to him, it'll be not fair. एक बार जोरदार तालियां हो जाए for Ganesh sir. Come on everybody, I request him to please join us on the stage. He is one of the 4 jury. Sir, आप बैठो उसके पहले. I will not miss this chance. Can you please share some few words? क्या बोलूं? ये कहूँगा कि फर्स्ट टाइम मैं किसी रियलिटी शो पे जज ऐसे आया हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है, कुछ अलग है इसमें, तो बहुत मज़ा आएगा. वो डांसर्स जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे मिलेंगे उनको देखने के लिए, बस यही कहूँगा. ऑल द बेस्ट. So usually what do you look in a dancer, like what is that one thing which strikes you, you know, like that one thing which has a space in your heart? Face, feelings, expressions, that's very important for me. All right, thank you so much sir. All right, now I request you to please be seated. And now I request Rashmi to please join us on the stage. She's this Gujarati chokri who has made us so proud. She's a popular Indian television actor known for her role as Tapasya in the popular television series Uttaran. She's seen doing dancing moves in Jhalak and doing stunts in Khatron Ke Khiladi. And I've met her once in Jaipur. I will love to mention this, that you know she's one person who has a golden heart. So एक बार जोरदार तालियां हो जाए for Rashmi. Rashmi, I'm also going to ask you the same thing, that you know you are a fabulous actor, and we also have Leslie sir. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Sir, I request you to please be seated. So we welcome Leslie sir, and let's continue. So Rashmi, what do you look in an actor? What is that one factor which should be there in an actor? Total entertainment, I believe. And for actor, I don't think so कोई limitations होनी चाहिए.
Actor has to be, of course, entertainment की तो बहुत ज़रूरी है. Timing बहुत अच्छे होने चाहिए. Emotions आप अपनी audience के साथ बहुत अच्छे से connect करो. That is more important. And I think ये सब मुझे सिर्फ मेरे dancing की वजह से मिला है. And yes, मेरे seniors से भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, which I'm going to definitely share. Thank you. It's so important to have a great panel of jury member. You know, when they are there, you have another level of motivation. And now, let me move ahead. Now, this gentleman, what do I say about him? Before that, we have Harshi Mad. I request Harshi to please join us. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. She's a UK based singer and she has done shows all across India, internationally, UK, Australia, America, Africa. Well, have you been to Africa? Do you know Swahili? A little bit. So Jambo. Habari gani zuri sana. So Harshi, tell me, what do you look in a singer? Like, tell us something about your journey. Tell us one thing which is so important to be a star. I think a natural flair along with a lot of confidence and believe in yourself, that's very important. And obviously a God gift definitely always helps, I guess. So she was a finalist of Indian Idol and Saragama, and it is amazing to have you. And now this gentleman I'm talking about, एक बार जोरदार तालियां हो जाए for Sanjeev Rathod, and he's a very famous musician. उन्होंने बहुत सारे हिंदी movies में music दिया है. And I think music is something, you know, which I feel is equivalent to medicine. You know, it always heals, and you actually time travel when you listen to some good music. So I'm not going to ask you any question. एक line. Maybe. Or maybe you want to sing a song, or would you like to say anything? Of course, I would just like to say कि you know music के बारे में तो यही कह सकते हैं कि it is endless. It is you know it is something that does I don't think so कि यहाँ हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में कोई ऐसा नहीं होगा जिसे म्यूजिक नहीं पसंद होगा. But I'm you know just hoping कि this show rocks and I wish all the participants all the very best. Thank you so much. I'll also let you know the process of how you can register. On the 6th, the registration process starts. Very simple, you have to upload your video. We will have mentors selecting top 20 in each category. So that means there will be top 100, and in top 100, we will select top 20 who will be performing in front of our esteemed panel of judges. Now, I think this is something which is so important and so easy. Now, you do not have to wait for auditions in this long queue. All you have to do is just shoot your video and send it to us. Alright, now let me talk about the two pillars of hope. For the first time when I met them, I could see so much of enthusiasm, I could see so much of passion, and this dream we all made sure had to turn into reality. Calling with us, जोरदार तालियां हो जाए for Harbijay Singh Gohil. एक बार जोरदार तालियां. Come on, everybody. After successfully exploring the real estate and construction, Harbijay is all set to fly with new wings of entertainment. So, how are you feeling today? आज आपका सपना पूरा हो रहा है. Thank you so much. I request you to please be seated. Now, when I met this gentleman, I asked him, you know, what made this dream come true? Like, what is the reason behind it? Is it the hard work, passion, technology, money? What is it? He smiled and he just said, trust. Your trust. Zordar talia ho jaye for the man himself, Hitesh Jani. Come on, the brain behind Hope. उन्होंने ये conceptualize किया है, and I think मैं और कुछ बोलूँ उसके पहले हितेश. Tell us, how are you feeling? This is your baby. So please share some few words. Okay. Sorry for being nervous. This is my first time, like, you know, it's a stage fright for me. Okay, the journey started just 8 to 9 months back when my son had auditioned for one of the prime channels, and he auditioned for a serial. And he had been selected, but due to certain reasons, like, you know, which I do not want to mention, he did not get a platform. So he was heartbroken, obviously, being a kid at the age of 12 or 13.
And so subconsciously this thought was going on my mind. And yeah, suddenly one day, as you already discussed, it was a very funny incident at 3 o'clock in the morning. I spoke to Mr. Goel and I called him at my place that I have some concept going on in my head, why don't you meet? So he had to rush in, and because he is my 3M friend all the time. So he came, we discussed the concept, and the concept went on for 2 hours, and that's how things went on, and it became a reality with his help. So yeah, thank you Mr. Goel for being there. Thank you so much. When I was in my school, I was taught, we all have that ability to transform our dreams, our potentiality into reality. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. And now I'm going to hand it over to you, ma'am. And I request all the media, you can ask any questions related to Hope, and no personal questions allowed. And now, I would request Leslie sir, first of all, thank you so much. This is so kind of you being here and supporting us. I think that's the reason, why our industry is one, they are there all the time to support each other. So now golden words from your side. Okay, hello and good evening, and before we even roll, I want to say all the best, because anybody with a great idea should go forward. I think I had many great ideas, so I'm here today. And especially with all the artists, whether you're singing, you're dancing, in the old days, वो कहते थे कि उस time में जब लता जी रहते थे, and those times of early music, you had to learn your music, you had to learn your craft. Only then you managed to come to a certain platform. अब बहुत कुछ change हो गया है. But I'm still saying you have to learn your craft. You can become modern, you can perform well, you can look fantastic, you can dance, you can sing. But when you're singing or when you're dancing, whatever, if you don't have your craft learned, if you don't study it, you're not going to go to the next level. And आज के ज़माने में I've seen that India is so superbly talented. India has some fantastic talent from singing, dancing, acting, all of it. And everybody is training, all are learning. तो सब कहाँ जाएंगे? There are so many singers, so many dancers. The ones in the future that are going to make it, and take this from me, are the ones who have passion. They are the ones who are going to make it. Everybody's going to be very good. Those are going to be awesome. So good luck to all the contestants and rock and roll. Thank you so much, Leslie sir. Your journey is very inspiring. And I meet a lot of musicians, I meet a lot of singers. And when I see their profile, they say, I have worked with Leslie sir. That's like one line that every singer adds. So I think Zorodar Talia, yes, support, everyone's support is really, really important for us. And now I give it to Mal. There's one very interesting thing about Leslie. He is the youngest man in the room. And that's how his music is also. And I'd like you to clap for this young man. I'd like to ask Ganesh ji, sir, what if there are like 10,000 youngsters who are really talented? Do you think we'll give them an opportunity? How do you feel as a person? You are like always there. So how do you feel? What kind of a opportunity do you feel? Will we select all of them? Will we give them an opportunity? Of course, जीतेगा वही जिसके अंदर टैलेंट है, और टैलेंट तो बहुत से में होता है, लेकिन यही मौका है कि आप अपने आप को प्रूव कीजिए, अपना टैलेंट दिखाइए डिजिटल के थ्रू. बहुत से लोग जैसे कहा कि उनके लड़के को सिलेक्ट नहीं किया गया, वैसे बहुत से लोग, अभी यही मौका है, क्योंकि शायद आप लोगों ने मुझे रियलिटी शो पे देखा नहीं होगा, तो यहाँ पे हूँ जहाँ पे इन लोग सिलेक्ट करेंगे कुछ 100 लोगों को, उसमें से हम लोग के पास आएंगे 20, उसमें से 4 मेरे पास आएंगे. तो मैं यही बोलूँगा कि यही मौका है, मार दो चौका है, विन. दैट्स इट. मुझे खुद को नहीं पता अभी तक. हाँ, मैं अभी भी मैं ये कह रहा था मैं डांसर हूँ कि मुझे मेरी डांस फॉर्म का पता नहीं. मुझे पता नहीं मैं हिप हॉप करता हूँ, लॉकिंग परफॉर्म करता हूँ या फोक करता हूँ. मैं जो यहाँ से आता वही करता हूँ, जो फेस से आता वही डांस करता हूँ. तो माय डांस फॉर्म इज फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस.
एक और सवाल आपसे पूछना था कि अगर 4 के बदले 40 होते हैं, 400 बच्चे हैं जो सच में बहुत टैलेंटेड है, क्या आपको लगता है we can give them an opportunity? Yeah, we'll go for season 1, 2, 3, 4, 10, 20 and we'll select. चलेगा ना भैया, मैं बोल दिया अभी। तो एक नहीं, मतलब अगर 40 हो गए तो 10 सीजन हो जाएंगे ना। It is not very easy to get an opportunity in television or film studio. मतलब platforms बहुत सारे हैं पर आने की opportunity बहुत difficult है. आपको क्या लगता है? Can you share some experience from your life on how easy to difficult it was, and some advice to the youngsters who want to come across? Difficulties are always going to be there, and I think it's part of your life, so you should be happily face it. And I think that is what is your experience that will make your base even more strong, and as a person you are more stronger. Because अभी जैसा आपने एक सवाल किया था कि 40 हो या 400 हो, आप खुद ही इतने, तो आई थिंक इंडिया में इतना सारा टैलेंट है पर प्लेटफॉर्म बहुत कम लोगों को मिलता है. एंड इट इज़ एक्चुअली ट्रू जो हितेश जी ने बताया दैट कि यू नो you are actually there at the gate, you're about to knock and somebody will just come and take your place. So this is a right platform. Do not waste your time. लंबी क्यू में नहीं खड़े रहना है. You don't have to wait and फिर बाद में वो पेट में जो constipation वाली feelings आती है वो नहीं होती. You just have to record, give your best shot, put it, and वो 5,000 रजिस्ट्रेशन में से जो बेस्ट 20 होंगे वो आगे आएंगे. एंड आई थिंक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एज एन एक्टर ऑल्सो टू फाइंड, बिकॉज एक ही जगह आपको सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, एक्टिंग और ये सारी चीज़ें आपको सीखने भी मिलेगी. एंड इट्स गोना बी पार्ट ऑफ योर जर्नी, एंड आप बहुत पॉलिश फेस से आप आगे आ सकते हैं. एंड वो कहते हैं ना कि 40 हो या 40 लाख हो या 1000 हो या करोड़ हो, मेहनत जो करता है वही आगे तक जाता है. और उससे उसका वो नसीब में पुराने जो, मुझे ये यूनुस परवेज़ जी ने कहा था कि आपके नसीब में है तो कोई नहीं लेके जाएगा. तो प्लीज़ हार्ड वर्क इज़ द ओनली की यू हैव. तो या ऑफ कोर्स मैं भी आज यहाँ पे, मेरी मॉम गवर्नमेंट टीचर थी, डैड वाज इंजीनियर, तो मुझे किसी की बैकिंग नहीं थी एक्सेप्ट माई डांसिंग. सो दैट्स हाउ आई एम हियर. Question is, while the participants who are recording their acting video, what are those few things they have to take care of? You know, like make sure they do the do's and the don'ts. You know, जिनके पास आर्ट होता है, कला, उनको ना सेटिस्फेक्शन बहुत कम होता है. तो आप 500 बार भी रिकॉर्ड करेंगे और ऐसे ये वाला एंगल और वो वाला एंगल, जस्ट बी नेचुरल एंड गिव योर बेस्ट. और आपको एक ही टेक में आपको अपने आप को फॉरवर्ड करना है. अगर बेस्ट होगा तो आप बेस्ट 20 में होंगे, और नहीं होगा तो फिर सेकेंड सीजन में आप होंगे. Thank you so much. I think usually they say that जब शूटिंग करते हैं ना तब बहुत सारे टेक्स लेते हैं, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड टेक होता है वही ओके टेक होता है. नहीं रिहर्सल्स करते हैं फिर उसके बाद 1 टेक होता है. ओके, that was a joke. Sanjeev ji, I want to ask you. Yeah, sure. Give us some thoughts about people who want to get into music, want to be musicians. Maybe they are guitarists, or maybe they want their music directors. Yeah. What are the things they should do, and what is it they should not do actually? Well, firstly, I would say that this is a great platform because जैसे कि हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं, and hats off to Hitesh and Harvijay ji जिन्होंने ये concept खड़ा किया, because digital is going to be the future, and it is going to be the biggest future. So this is a great opportunity for every musician, artist. I would say artist basically. हाँ, जहाँ तक म्यूज़िक का सवाल है तो म्यूज़िक is always from the heart, from the soul, you know. तो मैं यही कहूँगा कि try to touch souls of the judges, of the audience, and if you do that, I'm sure you'll be in the top 20 and top 4 as well, and you can of course win this great show. Music in your blood, but it was not easy. So tell us about how it was not easy for you, so they don't think it's like they are the only ones. Well, see, easy तो कुछ भी नहीं है दुनिया में. किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी चीज़ easy होती नहीं है. As Rashmi said, as sir said कि मेहनत, आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है. Luck is all up to the Almighty. वो उनके ही लिए छोड़ देते हैं. Give your best shot. बहुत सारी मेहनत करिए, लगन से करिए. Try to touch the heart and the soul, and you will be the winner for sure. Thank you so much.
Soul Harshi, tell us a little about what do you feel the competitors should do to touch people's souls. The good thing we have for the singing, we have two categories. We have the solo singers and also the group category also. So there'll be top 40. And if you say singing from the soul, I mean, music itself is straight from the heart. And if you get to touch someone's heart through your singing, through your music, through your dancing, through your acting, everything, in fact, there's nothing like it. I think that is the key to be a winner in this. It's definitely acquired talent. मतलब बचपन से मैं थोड़ा गुनगुना रही थी. डांसिंग का भी ज़्यादा शौक था, एक्टिंग का भी कीड़ा था और सब कुछ कर रही थी और सब साथ साथ में I was singing a lot more than the other stuff, so I stuck to singing. Ask you one thing कि आपको क्यों लगता है कि इस शो में आपने पार्टिसिपेट करना वर्सेस कोई रियलिटी शो में करना? इसलिए लगता है क्योंकि समझ लो कि मुंबई में है, बड़ी बड़ी लाइन लगती है, छोटे से छोटा बंदा 5-6 हज़ार रुपये उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है. इस शो में वो घर बैठे ये पैसे भी सेव कर सकता है और अपना टैलेंट भी दिखा सकता है. That's right. So, आप बताइए कि हर बाप को आप क्या एडवाइस देंगे इस शो के बारे में? As soon as they grow 14 plus, they can apply on House of Performers. So that is what we are looking at. So the vision is that as soon as they are 14, House of Performers will give you a platform. Please enroll in that, and we will be there for them. The father is going to be for all the children. So remember that. I'd like to ask Leslie now. You please give advice because you are the man. You've been teaching all kinds of youngsters from, I think, all of them from here to here are all under you, and you're still younger than all of them. So I think you're the one. Well, I can't give you any more advice. I think everybody has really put in all the key elements, and like I said, you need passion. But you know, it's really your 100% of you wanting to do it. वो जुनून होना बहुत ज़रूरी है. जब जुनून होगा, automatically you will try your best, and then of course top 20 हो जाएंगे, 4 आ जाएंगे, like you said, next season. So you have to have the junoon. You know, when I started with Indian Idol, 2 years हो गए इंडस्ट्री में और बहुत लंबी जर्नी थी. और मेरे फादर बहुत बड़े डांसर थे, कृष्णा गोपी, जो इनके डैडी के साथ ग्रुप डांस में काम करते थे, पीएल राजमाशा जी के साथ. मैंने राज्य के साथ भी बहुत काम किया. तो देखिए, मुसीबतें तो बहुत थी, लेकिन करना था, क्योंकि एक ख्वाब था मेरा नहीं, मेरे पिताजी का, कि उनको कुछ बनना था. जब मैं 10 साल का था, उनकी डेथ हो गई. उसके बाद वो ख्वाब में लेके आया हूँ यहाँ पे कोरियोग्राफर का, वही कंप्लीट कर रहा हूँ. अभी तक ऐसा लगता नहीं पूरा हुआ, कोशिश कर रहा हूँ. वो टाइम से लेकर अब तक आपने अपने आप में क्या चेंजेस देखे हैं? कपड़े दिखे ना चेंजिंग. बाकी तो वही, दिल से वही सब कुछ. कपड़े बदलते, पहले पुराने ज़माने में बाल लंबे होते थे, अभी छोटे हो गए और अलग अलग स्टाइल हो गया, लेकिन दिल से तो वही हूँ, अंदर से वही सब चीज़ें. मैं जो आज से 30 साल पहले कोरियोग्राफी कर रहा था, चाहे वो घातक का गाना हो, मारा रे छम्मा छम्मा हो, या आज का चिकनी चमेली हो, वही है, सिर्फ अंदाज बदल गया है, नया तरीका हो गया है, नया स्टाइल हो गया है, टेक्निक नई स्टाइल हो गई. अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, सीख ही रहा हूँ, इसलिए मैं गुरु नहीं बन पाया अभी तक, स्टूडेंट नहीं हूँ. कोशिश यही करता हूँ कि ज़िंदगी भर स्टूडेंट नहीं रहूँ. गणेश सर, जैसा आपने बोला कि डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा मौका दे रहा है. हाल ही में हमने देखा मध्य प्रदेश के एक प्रोफेसर को जिन्होंने डिजिटली बड़ा धमाल मचाया, डांस उनका बहुत है. आपने वो देखा, आपका क्या रिएक्शन? खास करके वो गाना कमल जी का ही था, इसलिए. हाँ, मैं से न मीना से न साथी से, मैं कैसे बोल सकता हूँ. मेरे प्यारे भाई गोविंदा जी का गाना है, और कमल जी ने किया था मनाली में. देखिए क्या है कि मुझे ये नहीं पता कब किसको क्या पसंद होगा. जब जिसको जो चीज़ पसंद आ गई, आप लोगों ने, पब्लिक ने उसको लाइक किया, उठाया, वो मतलब बहुत ही प्यारी चीज़ थी, और उन्होंने बहुत ही दिल से डांस किया.
उसके बाद उन्होंने कोशिश की वापस घर में करने के लिए, वैसे नहीं हुआ। उन्होंने जो शादी में किया वो इतना जान लगा किया, बहुत ही प्यारा किया। मैंने कम से कम 100 बार देखा उनको, उनके एक्सप्रेशंस, वो वही चीज़ जो हम लोग करते हैं और वही चीज़ आम इंसान करता है। और मेरी कोरियोग्राफी वही होती है जो आम इंसान करते हैं, चाहे आप वो ततर ततर कर लो, मल्लारी कर लो, खली वली कर लो, या जो भी गाना कर लो, हवन कुन कर लो, तो वो आम इंसान जो स्टेप करता हूँ मैं वही करता हूँ। इसलिए मुझे अभी तक पता नहीं चला कि मेरे डांस का फॉर्म क्या है, जेन्युइनली बता रहा हूँ। लेस्ली सर, जैसा गणेश ने कहा कि चीज़ों की रिकॉल वैल्यू का आपको पता नहीं चलता, क्या मानते हैं कि डिजिटल में, और आप लोगों ने तो एक वक्त पे हिप हॉप को इस तरह बढ़ाया, आज क्या चीज़ें हैं जो ज़्यादा डिजिटली चलने वाली हैं म्यूज़िक के लिहाज से? पहले तो मतलब डिजिटल नहीं था तो उस टाइम टीवी थी, टीवी पे MTV चैनल भी जो भी है, ऐसे बॉलीवुड से अलग म्यूज़िक स्टाइल, वो सब वो दोनों चैनल पे ज़्यादा चलते थे, वहाँ से स्टाइल शुरू हुआ है। अब जो डिजिटल आ गया, अभी किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, जिसके पास पैसा है वो प्रमोट करता है, लेकिन सही बात जो है कि जो असली आर्ट है वही वायरल होता है। अगर थोड़ी इजाजत तो बैठ जाए। ठीक है ओके, नेक्स्ट। Thank you. Any other questions? No, thank you. Bye. हाँ, बहुत है यहाँ पे। बोलिए सर। हाँ हाँ जी। बीच में कभी आप एक्टिंग का भी शौक लगा देते हैं, तो अभी सुना था बीच में कुछ मतलब तरीके से योजनाबद्ध आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाले एज एन एक्टर। तो वो हो गया, वो एयरपोर्ट पे किसी ने, आपके एक बंदे ने यूट्यूब पे छाप दिया। मैं बहुत छुप रहा था कि मैं कुछ ऐसे दिख के आऊँ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो आप बता दीजिए ना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो चेहरे से अभी भी वैसे ही लोग समझते हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि ऐसे कहीं से निकल जाऊँ, लेकिन सामने आता और ऐसे करते, आपको कहीं देखा है? हाँ, बोला नहीं आप गणेश हेगड़े, नहीं गणेश आचार्य, नहीं आप अहमद खान, नहीं गणेश आचार्य, ऐसे तो और कोशिश जारी है। मैं थोड़ा सा बीच में अभी थोड़ा बीमार हो गया था, लेकिन मैं कोशिश और कर रहा हूँ कि और पतला हूँ, जिससे मैं और 15 साल काम कर सकूँ बस। माय क्वेश्चन टू जजेस, आजकल रियलिटी शोज होते हैं जो सैटेलाइट चैनल्स के, रियलिटी कम होती है, शो ज़्यादा होता है, यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, ये डिजिटल है। यहाँ पे जैसे एक कहा इन्होंने कि एक वायरल हुआ वीडियो जिन्होंने गाना किया, हमें ये वही मौका है जहाँ पे आप अपना टैलेंट फर्स्ट वीडियो पे रिकॉर्ड करो और भेज दो। ये वीडियो पे जाके हम तक आएगा और हमको जो बेस्ट लगेगा हम उसमें से उसको 20 बेस्ट 20 चूज़ करेंगे, और हर जजेस के पास 4 आएंगे, उसमें सब। तो यही मौका है कि आप अपना टैलेंट, और इतना भी कह दूँ कि दिस इज़ फर्स्ट इम्प्रेशन एंड लास्ट इम्प्रेशन। आपका फर्स्ट वीडियो है जो आपको एक मौका देगा जहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। गणेश जी, आज के दौर में रिमिक्स का एक ट्रेंड चल रहा है। मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे गाने मैंने जुड़वा 20 साल पहले की थी, अभी वापस की थी। आपने 1-2-3 भी की थी? हाँ, 1-2-3 भी की। अच्छा रिस्पांस भी मिला और नॉट सो अच्छा रिस्पांस मिला फ्रॉम मेनी? पता नहीं, मैंने तो बहुत कोशिश की मैं अच्छा करूँ, लेकिन देखिए क्या है, गोल्ड इज गोल्ड, हम तांबा है, कितना भी कर ले घसले गोल्ड नहीं बन सकते। वो जो था उन्होंने बेस्ट, मैंने जैकलीन ने बेस्ट करने की कोशिश की थी। मेरे लिए बहुत टेंशन की बात थी क्योंकि सरोज जी ने किया था वो गाना, और उस गाने में मैं ग्रुप डांसर था 1-2-3 में, और उसके अलावा अहमद खान डायरेक्टर, मैं कोरियोग्राफर, तो बहुत टेंशन में मैंने वो गाना किया। पसंद आया, मैंने अपने तरफ से 100% किया जितना किया। गणेश जी, कैमरास के लिए अगर हो सकते तो ये साल का सबसे बड़ा हिट खली बली का कुछ स्टेप्स इफ यू कुड। ठीक है भैया, नहीं, ही इज राइट, बहुत सिंपल सा है। बहुत चलिए सर, हो जाए सर, आप लोग को हो जाए। मैं थोड़ा सा रोक दे इसको, फील के साथ से चलो भाई फोटोग्राफर है, फ्लैश चलो ना। दुनिया से मेरा खली बली हो गया। क्या करने के लिए आपको सर को जाना पड़ेगा।
गणेश जी, माधुरी जी का भी ऑनलाइन स्टार्ट किया था उन्होंने, और वो लेसन्स भी देती हैं इसमें, तो इसमें ऐसा कुछ होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें आपके पास जो टैलेंट है आप हमको भेजिए, हम उसको जज करेंगे और आपको सिलेक्ट करेंगे। ऐसा कुछ हम सिखा नहीं रहे किसी को कि हम कोई आएगा वो हम उनको बताएंगे कि आप ऐसा कीजिए। वो अपना बेस्ट भेजेंगे, हम उस बेस्ट में से बेस्ट चूज करेंगे और सिलेक्ट करेंगे, विनर करेंगे। तो सिलेक्ट करके इनको आप आगे फिल्मों में या ऑफ कोर्स अगर अच्छा टैलेंट था, डांस अच्छा रहा तो आई विल गिव यू चांस फॉर डांसिंग, असिस्टेंट, हर चीज में चांस दूंगा। एनीवेज बाकी हाँ जी। यही था बस, सब कुछ नहीं। अगर जो बेस्ट चार है, हमको जितने जजेस हैं जिनको हमको लगा कि ये बेस्ट है तो हम जरूर मौका देंगे। मौका तो मतलब क्या देने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप मिल जाएगा उनको। वो बेस्ट हो गए तो उनको मौका, जैसे मुझे मिला, इनको मिला, इनको मिला, वैसे हर किसी को मिलेगा। लेकिन जज जब आप तीनों, आप जितने भी जज बैठे वहाँ आपस में अगर नहीं पढ़ी किसी चीज को लेकर, नहीं ऐसा नहीं पढ़े, हम पहले से पटा के आए हैं। हम पहले से पटा के आए चैनल्स में। हाँ जी। ठन गई अगर तो किसकी चलेगी? नहीं देखिए, मेरे को तो आप इतने साल से जान रहे हैं, मेरे साथ तो हर किसी की पटी। पीछे से भी कोई बोलता है गणेश जी पटे कि नहीं पटे तो हम लोग सब मिलके आए हैं, हम लोग सब यहाँ पे बहुत प्यार से आए। हमारे चेहरे आपको अच्छे लग रहे तो जरूर पटेंगे। Thank you. Along with that, you'll be getting 1,11,111 rupees as a cash prize, and along with that, they are also going to make a music video, especially for the winners, in which all the 4 winners will be included. So the musicians will be doing the music, the actors will be acting, the singers will be singing, and likewise they'll make a music video, right? And also they will be the mentors for the next season. So these are the 3 prizes. Thank you. Okay. Thank you. देखिए ये वो प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले बात तो ये बोल दूं कि मैं किसी रियलिटी शो में जज रहा नहीं हूँ, ना कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे मुझे ये कहा गया है कि डिजिटली लोग अपने टैलेंट भेजेंगे, इन लोग सिलेक्ट करेंगे, उसमें से बेस्ट 20 में से 4 जो डांसर्स आएंगे वो मुझे सिलेक्ट करना है, उसमें से मुझे जज करना है। तो ये बहुत ही मेरे लिए बनने का, क्योंकि जज करते हुए कौन से चीज़ों पर आप ध्यान देंगे? देखिए ध्यान तो क्या, जो इधर टैलेंटेड दिखा, मुझे ऐसा लगा कि ये है वो बंदा, तो डेफिनेटली उसको चूज़ करूँगा, उसको बेस्ट इन लोग के हिसाब से डिक्लेयर करूँगा। जिस तरह से रियलिटी शो है, जितने भी टीवी पे जजिंग की बात करें तो आपका क्या ख्याल है, जो जजिंग होती है वो रियल होती है या स्क्रिप्टेड? देखिए मुझे इसके बारे में जेन्युइनली कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक कोई शो जज किया नहीं है, और ये भी शो मैं इसलिए जज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें इन लोग सिलेक्ट करके लाने वाले हैं। इसमें कोई मार्किंग नहीं है कि 1 से 10 या कोई ऐसा कोई डायलॉग नहीं है या कोई ऐसा इमोशनली फीलिंग्स नहीं है। ये बहुत ही स्ट्रेट रियलिटी शो है कि आप अपना टैलेंट दिखाओ, डिजिटली अपलोड करो और बेस्ट बन जाओ। सर इसके अलावा एक जो है वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है डब्बू अंकल का, हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे? अरे डब्बू अंकल, आपने दिल जीत लिया, मुझे गोविंदा जी की याद दिला दी। आई लव यू, कभी मिलिएगा मुझे आके। थैंक यू। आपने संजू के पिक्चर में भी गाना कोरियोग्राफ, एक गाना नहीं, सब गाने कोरियोग्राफ किए हैं, तो संजू का ट्रेलर आउट हुआ है, आपने देखा कितना? बहुत ही ज़बरदस्त। उसके बाद अभी गाना भी लॉन्च हुआ है संडे को, मैं बढ़िया तू बढ़िया, वो भी देखिए, बहुत अच्छा है। और मैं ये बोलूँगा कि पिक्चर बहुत ज़बरदस्त बनी है। राजू की फर्स्ट फिल्म जो इंटरटेन के अलावा इमोशनली बहुत अच्छी लग रही। ट्रेलर देख के मैं लंदन में था, नमस्ते इंग्लैंड के लिए, मैंने वहाँ से राजू को फ़ोन लगाया, वो राजू बहुत ज़बरदस्त है और मुझे उम्मीद है ये बहुत बड़ी हिट होगी फिल्म। अजीत जी, कितना जब आप पूरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, माफ कीजिएगा रोजा भी खोल रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, खोल लीजिए, बाद में बात करेंगे। हो गया। ओके। कितने गौरव की बात है गणेश जी का यहाँ होना, और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ एक हफ्ते नहीं, क्योंकि आपके बच्चे को मौका नहीं मिला, आपने पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा आइडिया आपने यूटिलाइज कर लिया और उसको ऑन बोर्ड ले आए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और वो यंगस्टर जो
कुछ बनना चाहते हैं उन्हें मौके नहीं मिल पाते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्लस गणेश जी का यहाँ होना कितना हौसला बढ़ाता है? सच अ प्राउड मोमेंट गणेश जी हिमसेल्फ। एब्सोल्युटली, आप जो बोल रहे हो बहुत सही है। ये जब भी कॉन्सेप्ट मैंने मेरे पार्टनर से डिस्कस किया था, बैकिंग तो था ही कि हम लोग करने वाले हैं, लेकिन जब भी हमको पता नहीं था कि ये कॉन्सेप्ट अगर हम एस्टीम जजेस के पास लेके जाएंगे, गणेश सर के पास लेके जाएंगे, वो हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे। और जब भी जैसे ही गणेश सर फर्स्ट टाइम मिले, इतने हम्बल आदमी मैंने कोई सेलिब्रिटी नहीं देखा आज तक। और जस्ट बिकॉज वो हमारे साथ है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मुझे 3 से 4 बार मिले अभी तक और हमेशा उन्होंने प्रेफरेंस दिया है। तो उनका हाँ बोलना कि मैं इस शो से जुड़ूंगा, वही एक हौसला था मेरे लिए कि मैं कुछ आगे करूं। तब जाके मैंने दूसरे सेलिब्रिटी से बात करी। अगर गणेश जी ने हाँ नहीं बोला होता तो मेरा हौसला टूट जाता। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। ओके हितेश, आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी सही शुरुआत है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, इतने बड़े दिग्गज इसका हिस्सा हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो खुद एक बहुत बड़े रियलिटी शो का हिस्सा रहेंगे, इतने सालों का तजुर्बा रखते हैं इंडस्ट्री में। गणेश जैसे दिग्गज लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या कहना चाहिए? गणेश जी इज़ द बेस्ट। मुझे हितेश ने कहा कि हमको मालूम नहीं था कि हमको हाँ बोलेंगे, सही है, पर जिसने जो हाँ बोल दी हमारे सब आ गया। और ये गणेश जी आ गए, यानी कि गणेश भगवान आ गए हमारे लिए। ओके, डू यू गेट इमोशनल, डू यू गेट नॉस्टैल्जिक जब इस तरह के नए लोग, नए मेकर्स मिलते हैं और आपको अपने दिन याद आते हैं? ऑफ कोर्स देखिए, नई चीज़, नए कॉन्सेप्ट, नई चीज़ें जो लेके आए हैं उनके लिए तो मेरा सपोर्ट हमेशा रहा और कई सालों से है और अभी करता रहूँगा इसके बाद भी। और मैं भगवान से दुआ करूँगा कि सीज़न 1 नहीं, इनके सीज़न 10, 12 जितने हो और सक्सेस हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये प्लेटफॉर्म, ये मौका छोड़ेंगे नहीं। प्लीज़ जल्दी से भेजिए अपने वीडियोस और कामयाब करिए। Okay, Ganu ji, do you agree with this? The innocent is the main power these people carry, you know? Yes, of course. They are both are very innocent and very genuine. मैं बहुत मुश्किल से किसी रियलिटी शो को हाँ बोलता हूँ, एक डिजिटली है। और इनके ये जो मैं फर्स्ट टाइम मुझे लेके आए और जिमी करके एक डांसर लड़का है, वो मेरे पास लेके आया था। उसने मुझे कहा कि इन लोग कर रहे हैं और मैं इनसे मिला और मैंने इमीडिएटली हाँ बोल दिया। ओके, थैंक यू जी। मुझे लगता है कि जैसे टीवी पे पहले शुरू हुआ था इंडियन आइडल, जब उसमें जो मैंने काम किया था, वहाँ से अब जो डिजिटल शुरू हुआ है वो तो बस अपने टीवी सेट पे नहीं है, आपके मोबाइल पे है, वर्ल्ड वाइड सब जगह है। तो इतने लोग और आपको देखते हैं जो आपका टैलेंट क्या है, आपका सिंगिंग क्या है, डांसिंग क्या है, परफॉर्मेंस क्या है। तो आई थिंक कि डिजिटल में जो पावर है वो टीवी से बहुत आगे है और जहाँ जहाँ तक कोने कोने के वर्ल्ड में पहुँचता है एक टाइम में, आई थिंक वो पावर जैसे ये शो जाएगा फट करके इट विल बी देयर विद एवरीबॉडी और इतने लोग देखेंगे। यू थिंक इज ग्रोइंग वेरी फास्ट डिजिटल को मूवी देख लें चाहे वेब सीरीज देख लें, डिजिटल को ऑप्शन ही नहीं है। ग्रो वेरी फास्ट तो करना ही है उसको, बिकॉज वो आप हमारा फ्यूचर है। तो आजकल आप सीडी नहीं लेते हैं ना, आप पेन ड्राइव पे कुछ गाना लेते हैं, वो सब वो भी पुराना हो गया। अभी आप स्ट्रीमिंग करते हैं, बस कोई गाना सुनना है तो बस बटन प्रेस कर लो और कहाँ से गाना बजता है आपका जो चॉइस का है, तो वहाँ से और आगे कहाँ जाएगा वो सोच सो कभी भी कोई एक नया आइडिया आता है तो वो चांसेस होते हैं कि सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं होगा, तो आपको क्या लगता है कितना सक्सेसफुल हो पाएगा? देखो, मेरा कहना है कि जैसे शो इनका आइडिया है, उनको ऐसा लगता नहीं कि सक्सेसफुल नहीं होगा, तो उनको नहीं लगता है कि सक्सेसफुल नहीं होगा, उनको लगता है कि सक्सेस होगा, इसीलिए उन्होंने किया है। अब शो जैसा होगा आगे जाके लोग पसंद करेंगे तो सक्सेसफुल होगा। सेम जैसे मैंने अभी मेरा एक यूट्यूब पे मेरा खुद का म्यूज़िक चैनल शुरू किया है, तो एक ही गाना है, अभी मई में शुरू हुआ, तो गाने का नाम है पैसे की माँ की आँख। और वो गाना एक है, जाते जाते पता नहीं किसी को अच्छा लगे नहीं, तो वो हम लोग करते कि वो हमको अच्छा ही लगता है। और इन्होंने भी जो शो स्टार्ट किया है इज़ बिकॉज दे लव इट। और उसके अलावा जब बाहर जाए तो इट्स गोइंग टू साउंड यू नो बाय द पब्लिक डिमांड। अभी हम जो शो, दिस इज़ काव्या, वो मेरे साथ मेरे शो में हमारे साथ गाते हैं। वो जब स्टेज पे आए गाएगी, मेरे साथ गाएगी, बैंड के साथ गाएगी, अच्छा लगेगा तो ही लोग विल वो सक्सेस होगा। हमको तो लगता है हम अच्छा गाते हैं। सो जो नया चीज़ करते हैं मुझे लगता है सबको अच्छा ऐसा लग रहा है कि इट्स वेरी गुड और हमको प्रेजेंट करना है, उसके बाद वो पब्लिक में। थैंक यू सो मच।
ओके रश्मि, नया शो आ रहा है, नए शो के बाद फिर से वापसी करने वाली है आप एक बार, इसके बारे में कुछ बताइए। इस बार आप जज कर रहे हैं, क्या क्या तैयारी करी हुई है आपने? तैयारियां हमसे ज़्यादा तो उनकी स्ट्रॉन्ग होगी, तो उन्हें जज करने के लिए आई थिंक हमें मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। सो बिकॉज व्हेन यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, तो वो ऑप्शंस में कहीं एक भी आप मिस ना कर जाए। एंड आई बिलीव इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड अ ऑसम प्लेटफॉर्म टू शो योर आर्ट एंड टू शो दैट व्हाट कैपेसिटी यू हैव, बिकॉज डांस, सिंगिंग एंड एक इंसान में इतनी सारी गुण भी होना वो भी बहुत अच्छा था। और बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियन आई मस्ट से, बिकॉज मुझे जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो आई ओनली गेट टू मीट लॉट ऑफ गुड म्यूजिशियन एंड अ सिंगर जो जेन्युइनली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म नहीं होता। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट शो फॉर देम। घर में ही बैठ के इमीडिएटली जब आप डाल देते हो, तो जैसे आपने किसी ने वायरल वीडियो के बारे में पूछा था, तो आई थिंक दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म। और इसके बाद उनकी जो आगे की चढ़ाई थोड़ी इजी भी हो जाती है, बिकॉज यहाँ से ही थोड़ा सा पॉलिश होके जाएंगे तो आगे पहुँचते आई एम श्योर दैट वो अपनी जगह पहुँच भी जाएंगे। एंड इसमें 5 अलग अलग जगह हैं, अपना डांस, एक्टिंग, सिंगिंग, और उसके अलावा भी 2 म्यूज़िक में भी एक ऐसी कैटेगरी उन्होंने रखी है कि ग्रुप और सोलो। तो सोलो एंड ग्रुप दोनों में ही इतना बड़ा टफ कंपटीशन होने वाला है, विच इज़ डेफिनेटली यू राइट, इट इज़ गोना बी डिफिकल्ट। रश्मि, एज ए जज क्या खास चीज़ें देखने वाले हैं जो भी कंटेस्टेंट अप्लाई करते हैं और आपके सामने परफॉर्म करते हैं? एक्टिंग और डांस खास तो डेफिनेटली आप जब एक एक्टर आप देखते हैं परफॉर्म करते हुए, उससे म्यूज़िक सिर्फ चला दो तो भी उसे इमोट करना पड़ता है, इमीडिएटली उसे एक मूड से दूसरे मूड पे फ्लक्चुएट करना पड़ता है, इमीडिएटली अपना स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ता है, कई बार हंसाना, कॉमेडी के टाइमिंग्स और सब ये छोटी छोटी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि ना कि जब आप आए ऑडिशन दे परफॉर्म करके और आप चले जाएं। रश्मि, आप एक्टर भी हैं और जैसे कि मैंने देखा डांसर भी हैं। ओके रश्मि, आप एक्टर भी हैं, डांसर भी हैं और अब आप जज हैं, तो क्या ज़्यादा चैलेंजिंग है आपके लिए, क्या ज़्यादा मुश्किल है, परफॉर्म करना कि जज करना? आई थिंक जजिंग इज मोर नर्वस एंड वेरी डिफिकल्ट जॉब टू डू इट, because see I'm trying to talk but the performer is so loud I'm not able to talk so ऐसे परफॉर्मर्स को जज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आप कुछ बताइए शो के बारे में। ये शो एक यूनिक शो है और जो म्यूज़िक की कैटेगरी है, जो सोलो और बैंड, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है इसमें, और ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और सबसे बड़ा ऊपर जाएगा ये। सर कोई टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविज़न में काम ऐसा काफ़ी पसंद करती है और चाह रही है कि आप वापस शो आपका आने वाला है या फिर प्लानिंग है टेलीविज़न में? मैं शोज़ करती हूँ तो मुझे टीवी में ना एक डिफ़िकल्टी हमेशा हुई है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक किरदार में इतना प्यार दिया और वो भी कुछ ज़्यादा ही लंबे समय तक दिया है। उसके बाद मेरा एक दूसरा शो आया तो अपने किरदार को मतलब वही इंप्रेशन को हटाने के लिए थोड़ा सा मुझे वक्त लग गया था, एज फ्रॉम तपस्या टू शॉर्टवरी। सो द जर्नी वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, येट मैंने तपस्या के बाद 3 साल का ब्रेक लिया था और उसके बाद मैंने ये शो किया था। बट स्टिल एज एन एक्टर आप में कुछ हमेशा वो खास नयापन, और लोग आपको जब एक्ट करें तब आपके साथ कनेक्ट भी करें और वो क्यों आपका शो भी देखे, तो आई थिंक दैट क्वालिटी ऑलवेज हैज़ टू बी देयर। मैंने एक शो ऐसा किया जिसमें मैं ग्रे थी, एक शो ऐसा किया है जिसमें मैं बहुत रोमांस कर रही थी। अब मैं कुछ नया करना चाहूँगी जो मतलब बहुत अनयूजुअल, जो रश्मि ने नहीं किया था। डेफिनेटली आई looking for something very power-packed, powerful performance, and that is the one of the reason I have chosen this show, because this journey is going to be even more easy for me to understand lot many things as an actor. तो रश्मि, जैसे हमने जो है गणेश जी को पूछा था कि उन्होंने जब करियर की शुरुआत की तो क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी थी, आपको अगर थोड़ी सी जर्नी के बारे में आप अगर बात करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ। मेरी जर्नी, जैसे मैंने कहा था कि डिफ़िकल्टीज़ हमेशा आती है, लेकिन मैंने कभी डिफ़िकल्टीज़ को ऐसे देखा ही नहीं। मुझे पता था कि ये अभी प्रॉब्लम होगी, क्रिटिसिज्म बहुत होता है, इनसिक्योरिटी एक्टर्स में बहुत होती है। अदरवाइज़ आप दूसरे जो डिपार्टमेंट होता है, डायरेक्शन, क्रिएटिव, उसमें भी मैं बहुत सहमी हूँ और बहुत शांत रहती हूँ। मैं अपने काम के अलावा ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, बट
ये सारी डिफ़िकल्टीज होता है कि मेरे रोल कट कर दिए जाते थे, डायलॉग्स कट कर दिए जाते थे, लाइटिंग्स में भी बहुत एक्टर्स होते, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि आपको कोई शेडो ना लगे और ये छोटी छोटी चीज़ें ताकि मैं गंदी दिखूँ। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने बहुत देखी है, बट कहते हैं ना कि हार्ड वर्क इज़ दी ओनली की। मेरे काम ने ही मुझे हमेशा आगे बढ़ावा दिया है, तो दैट इज़ द रीज़न आई एम स्टैंडिंग हियर। एंड फिर ऐसे बहुत सारी आज भी तकलीफ़ें ऐसी आती है कि हम लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं, नॉट ओनली विद हिज सन, विथ मी ऑल्सो, बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज़ वेरी टफ दीज डेज, कि हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं एंड समबडी विल कम एंड ग्रैब इट ईजिली एंड दैट पर्सन इज़ एक्चुअली नॉट, मतलब ये उसके लिए डिज़र्व करने वाली बात भी नहीं होती, बट दे गेट्स इट। सो या तो बड़े एक्टर्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है? आपको लगता है कि बड़े एक्टर्स के साथ जब भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं रोल ओवर शेडो हो जाता है? नहीं, बट आई थिंक व्हेन योर वर्क इज़ वेरी गुड नो, तो आपको कोई पीछे हटा ही नहीं सकता। थैंक यू। ओके ऋषि, सबसे पहले तो शो के बारे में बताइए। नया शो है, आप आ रहे हैं, क्या कितनी तैयारी करी हुई है आपने इसके बारे में? आई एम रियली एक्साइटेड। इनफैक्ट मैंने खुद बहुत लंबी लाइन में खड़े होकर मैंने ऑडिशन दिए हैं, एंड दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट कि आप लोग घर पे बैठे अपलोड करो। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, सो ऑल द बेस्ट इन लाइक कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, एंड इट्स गोना बी डिफिकल्ट to judge the competition also. जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे कंपटीशन के बारे में? कंपटीशन जैसे मैंने बोला कि इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म, कि जैसे मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पीपल हु आर स्ट्रगलिंग उनको मैं प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, बस मेरे लिए वही ड्रीम है। जैसे मैंने ये आई वांट टू मेक इट अ पैशन ऑल्सो, आगे जाके सीज़न 1, इसलिए वो विजन से हम लोगों ने सीज़न 1 लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे आगे जाके सीज़न 2 भी करना है और सीज़न 3 भी करना है, और ऐसे ही करके जाना है मुझे। सो कोई आइडिया को रियलिटी में लाना कितना डिफिकल्ट होता है? और मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगा, बिकॉज मिस्टर गोहिल थे, तो मुझे डिफ़िकल्टी बहुत कम हो गई, क्योंकि बहुत कंस्ट्रेंट्स भी थे। वो मैं डिटेल्स में तो नहीं बता सकता, लेकिन कंस्ट्रेंट्स थे, लेकिन बैकबोन मेरे पास इतना था, अच्छा था कि मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी इतनी नहीं लगी। हाँ, टू गेट द जजेस अलॉन्ग एंड टू गेट देम थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बिकॉज हमारे लिए फ़र्स्ट टाइम था कि कैसे कहाँ से कैसे अप्रोच करें। संजीव इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड, वी बीन स्टार्टिंग सिंस KG। इन्होंने और गणेश सर ने जब भी पहली बार हाँ बोल दिया, तभी हिम्मत हुई हमारी कि आगे जाएंगे, वरना अगर वो लोग मना कर देते तो हिम्मत टूट जाती। And congratulations for coming on the board for this. Thank you. Archie, do you think the Indian Idol, the format and the things from your time has changed for better, or the things are going on another level? I think I mean, there's now so many of the different singing platforms, but it's still evolving. There's still new stuff happening. There's a lot more masti happening than the focus on singing, but there's still so much more talent coming out, which is the main idea, and so many new talent are being discovered. And this also is like the perfect platform for more talent to be discovered. People who cannot travel for auditions, people who cannot get out, and this is like the ideal most platform for something like that. बहुत अच्छी बात कही आपने कि उनकी कहानी पे ज़्यादा, आजकल ड्रामा पे ज़्यादा हो जाता था, तो यहाँ पे लोगों को निकट ज़्यादा वो सब चीज़ें नहीं होंगी, एंड द फोकस विल बी ऑन द टैलेंट। यहाँ पे फुल फोकस टैलेंट पे ही है। हम लोग सिर्फ जजिंग में आएंगे और जजिंग करने के लिए, वीडियोस जजिंग के लिए, एंड इट विल बी जस्ट प्लेन वीडियोस बीइंग शोन। और इसमें आप लोग दिखेंगे नहीं, क्योंकि मैंने आप लोग देख रहे हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हैं? हम लोग दिखेंगे बाद में। नहीं, अभी एज फार एज द बैकड्रॉप इज कंसर्न, जो अपलोड करेंगे, हम लोगों ने क्या किया है कि लोकल जजेस जैसे होते हैं, भक्ति कुबावत हर सेल्फ, शी इज़ अ सेलिब्रिटी एंकर, वो एक एक्ट्रेस भी है, गुजरात में वेल नोन एक्ट्रेस है, तो जो भी वीडियोज़ आएंगे हम उनको दिखाएंगे। जैसे सिंगर्स है, बहुत सारे एस्पायरिंग से, आई वुड नॉट नेम इट राइट नाउ, आई वांट टू रिवील द पैनल अगेन लाइक दिस शो इन द नेक्स्ट 1 मंथ। जैसे ही रजिस्ट्रेशन क्लोज होता है, हम लोग एक गुजरात प्रेस मीट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग सबको, सब वो जो ज्यूरी जिसको स्क्रूटिनाइज करेगी, हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे कि कैसे बैक पैनल स्क्रूटिनाइज हो रहा है और सिलेक्शन हो रहा है। वो एक ऑल वेल नोन फेसेस ही होंगे और वेल नोन सेलिब्रिटीज़ ही होंगे। Then we will come back in for the finals. Okay. Thank you so much. Thank you.
Yeah.